Hello, my CA Foundation friends. Now let us start the revision of Companies Act for your examination. My name is CS CMA Prasad Bhatt, rank holder, your anchor friend, and let us start. Why waste time? Yes, so Companies Act, still now we have revised all the topics, whether it is contract or negotiable and sale of goods, partnership, everything is done. So now let us go to Companies Act, जिसका वेटेज अच्छा है. बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे LLP है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उनका वेटेज इज लेस देन 10, 6, 7, 8. बट इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट द वेटेज इज ऑन द हायर साइड, अराउंड 12, 15, 16 मार्क्स तक भी वेटेज आ सकता है. So let us see what Companies Act is all about. Let us try to revise the entire syllabus of Companies Act जो अपने फाउंडेशन में है in a matter of just an hour or little bit more than 1 hour. चलिए let us start. So we start with the basic meaning. What is the definition of a company and applicability? So legal definition क्या बोलता है? Legal definition बोलता है company means a company incorporated under the Companies Act 2013 or any previous company's law. And we know that पहले का अपना जो Companies Act था that was 1956. इसका मतलब है कि all those companies जो 2013 के बाद incorporate हुए हैं, obviously they will be called as company. लेकिन the previous laws, so before 2013 was 1956, उससे पहले भी under British rule they were company laws. हमने सुना है कि आपको पता भी है rather that there are so many companies like say Tata Steel हो गए, Kirloskar Brothers, they started in the 1800s. That means 1800s में शुरू हुए, so they were created under the previous Company Act. So even they will be considered as companies. उन्हें भी कंपनी माना जाएगा as per the definition. Okay. And one common definition, ये हो गया legal definition. ठीक है, ये हो गया legal definition. And now what is a common definition? General meaning जो बोलते हैं एकदम कि a company is an artificial legal person. I'm sure आपने ये 11th 12th OC में भी पढ़ा है. Company is an artificial person created by law having a common seal and perpetual succession. So automatically ये जो अपना common meaning है, legal meaning ऊपर दिया हो. The company is defined incorporated वगैरह as per company 2013 या पहले वाले को भी हम मान लेंगे, that is a legal definition. And ये अपना normal general meaning of the word company कि company is an artificial person. हम लोग कौन है? हम लोग हैं natural person. So natural person means we are created by birth naturally. But a company is also a person, but it is created by law. कानून कंपनी को जन्म देता है एंड इसीलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एंड लीगल पर्सन हैविंग अ कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन. सो इसके बारे में हम लोग और देखेंगे इन द फर्दर स्लाइड्स. ना 4 मार्क्स क्वेश्चन है अपना अगला. एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट. करेक्ट दिस क्वेश्चन दे कैन आस्क कि कंपनीज एक्ट किस किस टाइप की कंपनीज को अप्लाई करता है. सो somebody may say whether companies act is applicable to partnerships, whether companies act is applicable to LLP. इसीलिए ऐसे सवाल आएंगे, इसीलिए द लॉ इज क्लियरली डिफाइंड कि कंपनीज एक्ट किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को अप्लाई करता है. सो नंबर 1, ऑब्वियसली कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या प्रीवियस या 2013 2013 कंपनीज एक्ट में वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं या पहले 1956 में इनकॉर्पोरेट हुए हैं या उससे पहले वाले कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हैं. सो ऑल ऑफ देम कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल. ये तो इजी हो गया. सेकंड, कंपनीज एक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज. लेकिन क्या ये पूरा का पूरा एप्लीकेबल है? क्या हमेशा कंपनीज एक्ट उनको अप्लाई होगा क्या? द आंसर इज नो. आगे दिया है एक्सेप्ट जहां पे कॉन्फ्लिक्ट with the Insurance Act, IRDA Act. सी कैसे होता है कि इंश्योरेंस 3 टाइप्स, तीनों एक साथ देखते हैं. इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी.
सो इन तीनों टाइप की कंपनीज को, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों को कंपनीज एक्ट नॉर्मली अप्लाई करेगा unless there is a conflict with the special law. See, there is a concept called as a general law and a special law. And जब भी जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ में झगड़ा होता है तो ऑब्वियसली स्पेशल लॉ विल अप्लाई हमेशा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो सपोज हमारे एक फैमिली में मम्मी है, पापा है. इन सम फैमिलीज करेक्ट, पापा इज द मेन डिसीजन मेकर. इन सम फैमिलीज मम्मी इज द मेन डिसीजन मेकर. ठीक है, नाउ एज लॉन्ग एज एग्जाम्पल लेते हैं ना, सपोज फैमिली ए है. सो फैमिली ए में मम्मी इज द मेन डिसीजन मेकर. ठीक है, फैमिली बी में पापा इज द मेन डिसीजन मेकर. सो जब तक दोनों साथ में चल रहे हैं, जब तक मम्मी पापा एग्री कर रहे हैं, देन डजंट मैटर. बट व्हेन दोनों में हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, पापा ने ऐसे बोला, मम्मी ने वैसा बोला, दो अलग ओपिनियंस दे रहे दोनों, सो इन दैट केस जो डोमिनेंट है दैट डिसीजन विल अप्लाई. सो वैसे ही यहाँ पे भी होता है इन सिंपल वर्ड्स कि कंपनीज एक्ट है और इंश्योरेंस एक्ट है, IRDA. सो इंश्योरेंस एक्ट IRDA ये स्पेशल है, ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के लिए. इसका मतलब है जब तक कंपनी और IRDA साथ साथ चल रहे हैं नो प्रॉब्लम. लेकिन जैसे ही दोनों ने डायरेक्शन बदली तो स्पेशल कौन है? इंश्योरेंस एक्ट. IRDA स्पेशल है तो दैट विल बी प्रिवेलेंट. तब कंपनी लॉ नीचे बैठ जाएगा, IRDA में जो लिखा है वो अप्लाई हो जाएगा. वैसे ही बैंकिंग में हमको पता है RBI है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है. तो जब तक दोनों साथ में चल रहे हैं नो प्रॉब्लम. जब दोनों ने प्रोविजन बदल दिए तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विल बी एप्लीकेबल. तो इसीलिए वहां पे लिखा है एक्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मतलब दोनों के रूल जब बदल जाते हैं, अलग रूल्स बता रहे. मतलब कंपनीज एक्ट बोल रहा है 3/4 मेजोरिटी चाहिए, बैंकिंग रेगुलेशन बोल रहा है 2/3 चाहिए. ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा? बैंकिंग रेगुलेशन विल अप्लाई. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोविजन कि जब तक दोनों साथ साथ है नो प्रॉब्लम. जैसे ही कुछ अलग प्रोविजन आते हैं देन द स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल law. Then Companies Act also applies to any company governed by the Special Act. So Special Act मतलब created by the Parliament, and any other body corporate which is notified by the central government. So 6 points है, 4 marks का question आता है कि Companies Act किस किस टाइप के कंपनीज को applicable है. So अगर सवाल ऐसे आता है तो how will you start the answer? You start the answer with the legal definition. यहाँ से आप first point लिखो legal definition. उसके बाद आप जनरल मीनिंग भी लिख सकते हैं एंड देन उसके बाद यू गो टू द मेन आंसर. सो इंट्रोडक्शन लिखा, मेन डेफिनेशन, जनरल मीनिंग लिख दिया एंड देन यू राइट द 6 पॉइंट्स. ठीक है, एंड देन 4 out of 4. बिकॉज लॉ पेपर में ना एक इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है. अगर वो पूछ रहे हैं कि कंपनीज एक्ट किसको अप्लाई करता है तो पहले व्हाट इज अ कंपनी जनरल मीनिंग लिख दो एंड देन यू राइट द एप्लीकेबिलिटी एंड ऑल द मार्क्स आर योर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ कंपनी. नाउ फीचर्स ऑफ कंपनी इतना सबको आता है कि जनरली नाउ दे विल नॉट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन फीचर्स, दे विल आस्क अ केस बेस्ड क्वेश्चन कि ऐसा हुआ वैसा हुआ तो क्या होगा. फर्स्ट फीचर है सबसे फेमस, सेपरेट लीगल एंटिटी. और इसके केस भी सबको पता है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन. एवरीबडी नोज दिस केस एंड एवरीबडी इज मतलब क्या हुआ, रट लिया है सबने ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन. कि सोलोमन था इंडिविजुअल, अपना बिजनेस में बेच दिया कंपनी को, देन बाद में कंपनी को लॉसेस हो गए. क्रेडिटर्स ने बोला कि भाई नहीं सोलोमन और कंपनी सेम ही है, इसी की कंपनी है, नाम भी सेम है, यही मेजोरिटी शेयर होल्डर है. बट व्हेन द मैटर वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट डिसाइडेड दैट नहीं, सोलोमन एज अ इंडिविजुअल अलग है, उसकी कंपनी अलग है, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटीज. एंड दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल बिकेम फेमस, सोलोमन वर्सेस सोलोमन. एक और केस है ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग. सेम सिचुएशन, मिस्टर ली वाज द मेन ओनर, प्रमोटर, मैनेजर ऑफ द कंपनी, बट इवन दो द पर्सन एंड द कंपनी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट लीगल एंटिटी. ओके. सेकंड इज लिमिटेड लाइबिलिटी. करेक्ट. द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड शेयर्स. जितने शेयर्स लिए हैं
उतनी ही अपनी लाइबिलिटी है। सो मैंने अगर 10 शेयर लिए हैं और पर शेयर मेरी लाइबिलिटी सपोज 20 रुपए है, सो व्हाट इज माय मैक्सिमम लाइबिलिटी? 10 into 20 रुपीज, दैट इज 200। उसमें से मैंने 150 पे कर दिया है, तो अनपेड कितना बचा? 50 रुपए अनपेड बचा। सो माय लाइबिलिटी इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट इज अनपेड। दिस विल हैपन इन केस ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, तो उसमें क्या होगा? जो मैंने प्रॉमिस किया है, जो मैंने अंडरटेकिंग दिया है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो आई प्रॉमिस टू पे XYZ अमाउंट। सो व्हाट इज माय लायबिलिटी? माय लायबिलिटी इज ओनली दैट अमाउंट व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड टू पे इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये होगा गारंटी के मामले में। तो अगर शेयर्स है, देन जितने शेयर लिए हैं, जितने मेरी अनपेड लायबिलिटी है, दैट इज व्हाट इज माय मैक्सिमम लायबिलिटी। गारंटी है, जो मैंने प्रॉमिस किया है वाइंडिंग अप में पे करेंगे, उतनी ही मेरी लायबिलिटी। नथिंग, नॉट अ रुपी, 1 रुपया उससे ज्यादा दे कैन नॉट आस्क मी टू पे। परपेचुअल सक्सेशन, करेक्ट, वेरी सिंपल। The Reliance company was created by Dhirubhai Ambani, is no longer with us, but the company continues. Tata Steel started by Jamshedji Tata, correct. JRD Tata hai, Ratan Tata, all good people, and unfortunately they are not with us, but the company continues. So members आएंगे जाएंगे, कुछ शेयर बेच के निकल जाएंगे, अरे कुछ दुनिया से निकल जाएंगे, but the company will continue. This feature is called as perpetual succession. Capacity to sue. A company is an artificial person, मतलब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर सेपरेट एंटिटी है, देन कंपनी एज अ आर्टिफिशियल पर्सन कैन स्यू। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरा आइडिया का नेटवर्क है, फोन नेटवर्क आइडिया का है, एंड इफ माय नेटवर्क सर्विस इज वेरी बैड, देन आई कैन नॉट स्यू मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, ही इज द ओनर ऑफ आइडिया। आई कैन नॉट स्यू मिस्टर बिरला, आई हैव टू स्यू द कंपनी। मुझे आइडिया वोडाफोन कंपनी पे केस करना है, ना कि मिस्टर बिरला पे जो ओनर। एंड वाइस वर्सा, अगर मैं बिल ही नहीं भर रहा हूं, सपोज मेरे पास अभी कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एंड मैं क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर रहा हूं, तो मिस्टर उदय कोटक इज नॉट गोइंग टू स्यू मी, ही इज द हेड ऑफ कोटक बैंक, बट मिस्टर उदय कोटक विल नॉट स्यू मी, कोटक बैंक विल स्यू। सो एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, केस होगा कंपनी के नाम पे, केस करेंगे भी कंपनी के नाम पे, बिकॉज इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू सेपरेट एंटिटी। अगर कंपनी का एग्जिस्टेंस ही अलग है, तो प्रॉपर्टी भी क्या है? कंपनी के नाम पे है। इसमें भी फेमस केस है मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस। इसमें भाई ने क्या किया, 99% शेयर उसके पास थे, तो उसे लगा कि मैं ही कंपनी का मालिक हूं। उसने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल ली, और इंश्योरेंस पॉलिसी में कंपनी का नाम डालने के बदले खुद का नाम डाल दिया। जबकि जो एसेट्स थे, वो एसेट किसके नाम पे थे? कंपनी के नाम पे थे, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हुई? पर्सनल नाम पे डाल दी। क्यों? उसे क्या लगा? सेम ही है। और जब आग लग गई, इंश्योरेंस क्लेम किया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया, बोले तो नहीं मिलेगा क्लेम का पैसा। बोला क्यों नहीं मिलेगा? बोले पॉलिसी आपके नाम पे है। वो बोला बट मेरी ही कंपनी है। तो अगर मेरी ही कंपनी है, तो कंपनी के एसेट मेरे एसेट। इंश्योरेंस ने बोला नो नो सर, गलत है। कंपनी के एसेट कंपनी के, आपके एसेट आपके, सेपरेट एसेट्स। एंड दैट इज व्हाई उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया, बिकॉज एसेट्स थे कंपनी के नाम पे, पॉलिसी थी मालिक के नाम पे, और मालिक और कंपनी अलग, दोनों के एसेट्स अलग, इसीलिए सेपरेट प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंपनी, कि कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ये होना चाहिए। इसमें सिर्फ क्या हो जाता है कि अगर कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, तो ट्रांसफरेबिलिटी हो जाती है रिस्ट्रिक्टेड, और अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, तो ट्रांसफरेबिलिटी हो जाती है फ्री। लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर किसी कंपनी ने बोला कि ट्रांसफर करना ही नहीं है, खत्म, सच अ क्लॉज इज वॉइड। ओके, इफ एनी कंपनी से पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने अगर पहले ही लिख दिया एक बार शेयर ले लिया, किसी को दे नहीं पाओगे,
परमिशन भूल जाओ, अलाउड ही नहीं है ट्रांसफर करना, ऐसा क्लॉज नहीं डाल सकते, और अगर डाला है सच अ क्लॉज इज वॉइड एब इनिशियो। सो ट्रांसफरेबिलिटी एक कंपनी की इंपॉर्टेंट फीचर है। सिर्फ क्या है, प्राइवेट लिमिटेड में पूछ के ट्रांसफर करो, पब्लिक लिमिटेड में बिंदास ट्रांसफर करो, बट ट्रांसफर कर सकते। नेक्स्ट फीचर इज कॉमन सील। कॉमन सील 1956 से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, लेकिन इन द ईयर 2015 में जो अमेंडमेंट आया, कॉमन सील इज नाउ ऑप्शनल। सो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 से आपको पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस योजना के अंतर्गत कॉमन सील को कर दिया ऑप्शन। सो अगर आपको कॉमन सील नहीं रखना है तो मत रखिए, इंस्टेड ऑफ दैट क्या करो आप, 2 डायरेक्टर शुड साइन और 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी शुड साइन द डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शनल मतलब कुछ तो अल्टरनेटिव होना चाहिए ना, ठीक है। सो अगर कॉमन सील है तो आप कॉमन सील लगा दो, अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स या फिर 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी सिग्नेचर इज सफिशिएंट टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट्स। देन कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। इसका मतलब है कंपनी इज नेवर क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट इज नॉट क्रिएटेड इम्प्लाइड, ऐसा नहीं होता। इट्स अ वॉलेंटरी, लोग सोच समझ के डॉक्यूमेंट्स बना के आरओसी को बता के कंपनी क्रिएट करते हैं। ये ऐसा नहीं हुआ अरे मैं तेरा पार्टनर तू मेरा पार्टनर, हो गया पार्टनरशिप, ओरली हो गया, ऐसा नहीं होता। सो इट्स अ वॉलेंटरी, सोच समझ के लोगों ने मिल के कंपनी क्रिएट की है। So it is neither implied nor by operation of law. It is a clear-cut documentation, action of the parties, creation of company. Then ownership versus management. Now generally अगर कंपनी छोटी सी है, ठीक है, 10 ही लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 ही लोग होंगे तो ओनर भी वही है और मैनेजमेंट भी वही है, पॉसिबल, चलेगा। 7 ही लोग हैं, ओनली 7 पीपल इन द कंपनी, उतने ही शेयर होल्डर है, वही मैनेजर है, सो चलेगा कि मैनेजर भी 5 6 7, ओनर भी 5 6 7, इट्स ओके। लेकिन एज कंपनी साइज ग्रोज, जैसे जैसे हम बाहर वालों से पैसा लेते हैं, उनको शेयर होल्डर बनाते हैं, आईपीओ आता है, फिर शेयर होल्डर बन जाते हैं हजारों। इन बिग कंपनीज लाइक रिलायंस एंड टाटा द शेयर होल्डर्स आर इन लैक्स, और इतने सारे शेयर होल्डर मतलब इतने सारे ओनर्स बन गए, और इतने सारे लोग तो कंपनी मैनेज नहीं कर सकते ऑन अ डे टू डे बेसिस। सिंपल रीजन, सब लोग अलग अलग शहरों में हैं, दूसरा उनके अपने अपने काम है, और तीसरा सबको मैनेजमेंट आता भी नहीं है। एंड देयरफॉर कंपनी वाले क्या करते हैं, ये जो हजारों शेयर होल्डर है, दे विल अपॉइंट अ टीम टू मैनेज द कंपनी, और इस टीम को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो मैनेजमेंट किसके पास है, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है मैनेजमेंट। ओनर्स कौन है, ओनर्स है सारे शेयर होल्डर्स, एंड देयरफॉर सारे शेयर होल्डर्स हैं, बट मैनेजमेंट इन 10 लोगों को दिया गया है, ये 5 लोगों को दिया गया है, 8 लोगों को दिया गया है, दे आर द एक्सपर्ट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द एक्सपर्ट्स। सो उनके भरोसे पे कंपनी चलाते हैं। सो इज इट पॉसिबल कि दोनों सेम है, यस। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस देन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, owners will be many thousands, management will be different, who are the board of directors, and therefore दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यस, जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है, उनके पास आता है एक डॉक्यूमेंट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड उसके सारे जो पावर्स हैं, द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इज गिवन बाय द मेमोरेंडम। So, जो मेमोरेंडम में लिखा है, कंपनी कैन डू ऑल दोज बिजनेसेस, दे कैन एंटर इनटू ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन जो मेमोरेंडम कंपनी को बोलता है कि आप ये सब कर सकते हो, वही मेमोरेंडम कंपनी को ये भी बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड एज लिमिटेशन ऑफ एक्शन, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट। ओके, दिस पॉइंट वी हैव सीन इन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ रहे थे, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ओके, एक था माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
उसमें आता है कंपनी। दैट मीन्स अगर कोई एक्शन, अगर कोई बिजनेस मेमोरेंडम के बाहर जाके करते हैं, आउटसाइड द मेमोरेंडम, इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायर्स वॉइड। तो जो मेमोरेंडम कंपनी को पावर देता है, वही मेमोरेंडम कंपनी को रिस्ट्रिक्शन भी डालता है। एंड एनीथिंग आउटसाइड द मेमोरेंडम इज void ab initio. And the last feature of company is termination. So कंपनी को जन्म कौन देता है? लॉ। और कंपनी को टर्मिनेशन मतलब कंपनी को बंद कौन कर सकता है? लॉ। एंड दैट पावर इज गिवन टू NCLT. So NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. So tribunal is a special judicial powers. पहले क्या था? सारे पावर्स कोर्ट्स को थे, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट वाले बोले भाई कितना काम करें हम लोग, इतने केसेस पेंडिंग है। सो देयरफॉर गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट किए और उनको नाम दिया ट्रिब्यूनल। सो कंपनी लॉ रिलेटेड जो मैटर है दैट विल गो टू NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स का अपना अलग ट्रिब्यूनल है। सो हर एक लॉ को उन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया फॉर एफिशिएंसी, ऑब्वियसली जल्दी हो जाएंगे काम। पहले क्या था? सब हाई कोर्ट के पास जाता था, बट नाउ स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स आर क्रिएटेड. सो वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस, डिसोल्यूशन इज अ लास्ट स्टेप, सब मिला के हम बोलते हैं लिक्विडेशन, टर्मिनेशन. करेक्ट? सो लिक्विडेशन. सो पहले वाइंडिंग अप, ऑल एसेट्स आर सोल्ड, लायबिलिटीज आर पेड, एंड देन कंपनी का नाम हो जाएगा डिलीट बाय द पावर ऑफ NCLT. पास करेंगे डिसोल्यूशन ऑर्डर. So these are the various features of a company. Next question again important, एग्जाम में आता है, lifting the corporate wheel. So इसमें either सवाल आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि what is corporate wheel, how it is lifting of corporate wheel and give examples. 4-5 मार्क्स का सवाल आ सकता है. Or else they may ask a scenario based कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बताइए क्या हो. So बेसिक थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, तो देखते हैं पहले. सो कॉर्पोरेट व्हील पियर्सिंग या लिफ्टिंग का बेसिक मतलब क्या है? द कोर्ट्स लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी टू होल्ड द रियल पर्सन्स. इंपॉर्टेंट देखिए, बिहाइंड. दे विल लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट रियल पर्सन्स एंड ignore the separate legal entity concept. सो सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ली वर्सेस लियर फेयर फार्मिंग, उसमें क्या कोर्ट ने डिसाइड किया कि कंपनी एंड मेंबर्स आर डिफरेंट. करेक्ट? यहाँ से ओके, बढ़िया, ठीक है. सो लेकिन लोग क्या है ना, लोग मतलब हम लोग बहुत चालाक लोग, इंटेलिजेंट लोग हैं. जैसे हमको मालूम पड़ा कि यार कुछ भी हुआ ना तो कंपनी पे जाता है, कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो कंपनी के नाम पे जाता है, बिकॉज कंपनी और मैं डिफरेंट है. And therefore, what people started doing wrong things. People started committing frauds. People started breaking contracts. People started bypassing laws. मतलब सारे गलत काम करने शुरू कर दिए, लेकिन कंपनी के नाम पे. एंड बाद में कोर्ट में जाके खड़े हो गए, सर सोलोमन ने आपने बोला था कि दोनों अलग अलग है. तो मेरा कुछ नहीं भाई, वो कंपनी को है, जो भी फाइन लगाना है ना कंपनी को लगाओ, मैं तो अलग इंसान है. तो कोर्ट्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये साले लोग है ना, ये साले बहुत ना चालूगिरी कर रहे हैं, कंपनी के नाम पे गड़बड़ कर रहे हैं, कंपनी के नाम पे घोटाला कर रहे हैं, और घोटाला करने वाले पीछे. सो देयरफॉर कंपनी के जो ये प्रॉब्लम शुरू हो गए, सो कोर्ट्स ने आइडेंटिफाई किया. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं बैंक लूटने जा रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं मास्क पहन के जाऊंगा ना, ताकि कोई मुझे पहचान ना सके. ओके, आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, जो बैंक रॉबर होते हैं वो अलग अलग मास्क पहन के जाते हैं. कोई से पूरा का पूरा मास्क पहनता है, कोई दिन कार्टून के मास्क कैरेक्टर पहन के जाते हैं, कोई जोकर के मास्क पहन के जाता है, जिससे अगर वो बैंक में CCTV वगैरह सब है, इससे वो जो रॉबर्स हैं, जो चोर है ना, बैंक चोर, वो पहचान में ना आए. दैट इज द होल पार्ट, इसीलिए वो मास्क पहन के जाते हैं. एंड देयरफॉर इन केस ऑफ दिस ऑल्सो, जो
मैनेजमेंट, जो ओनर्स है, जो घोटाले वाले लोग हैं ना, वो कंपनी के नाम का मास्क पहन लेते हैं, और जो भी फ्रॉड्स है वो कंपनी के नाम पे फ्रॉड करते हैं। सो कोर्ट्स क्या करते हैं, कोर्ट्स उस मास्क को निकाल देते हैं, उस मास्क को फाड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं, और पीछे कौन रॉबर है, पीछे कौन चोर है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वी। ओके, सो दैट इज द मेन कंसेप्ट। सो आपको ये सब दिखना है कि द मेंबर्स, ओनर्स, दे कमिट क्राइम्स, malpractices in the name of company. So the courts have to identify the real people. यहाँ पे दिया है ना, they have to identify कि भाई ये असली कौन है। So केसेस के नाम पूछते हैं, एग्जाम्पल में दे बोलते हैं कि भाई केसेस के नाम लिखो। So पहला है गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उसने ये सब किया था। उसने बोला मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, और कंपनी के नाम पे सब वैसे ही किया। तो उसने क्या बोला, मैंने इंडिविजुअली बोला था नहीं करूंगा, वो तो कंपनी कर रहे हैं, हम दोनों अलग हैं। कोर्ट ने बोला चुप बैठ, नीचे बैठ, दोनों सेम ही है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी को उन्होंने तोड़ दिया। सेकेंड सिचुएशन, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब वर्ल्ड वॉर में आपको पता है जब भी वॉर होता है देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ एलियन एनिमी, एंड उनके साथ बिजनेस नहीं किया जाता। मतलब अगर कल इंडिया और चाइना का वॉर हो गया, या इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया, इन दैट केस जो चाइनीज कंपनीज इंडिया में है उनको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करेंगे। ये वो पहली बात। लेकिन दूसरी बात क्या है, जो कंपनी इंडियन है लेकिन मैनेजमेंट चाइनीज है, उसे भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो वैसे इस केस में हुआ कि ब्रिटिश कंपनी थी बट मैनेज बाय जर्मन सिटीजन्स। ओके, ब्रिटिश कंपनी मैनेज बाय जर्मन सिटीजन्स, एंड जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन वॉर था, इसीलिए उस कंपनी को आइडेंटिफाई किया कि भाई तू कंपनी ब्रिटिश है लेकिन तेरे मालिक जर्मन है, तो तू वहां का हो गया, आइडेंटिफाइड। सिमिलर अमेरिकन कंपनी, तो वहां पे क्या था, उन्होंने बोला था सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही अलाउड है। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ नाम के लिए ब्रिटिश कंपनी खोल के भेज दिया, लेकिन सारे ओनर्स कौन थे, कंट्रोल किसके पास था, अमेरिकन कंपनी। सो इट आइडेंटिफाइड कि कंपनी तो ब्रिटिश है बट कंट्रोल इज अमेरिकन, सो आइडेंटिफाइड। सो एफजी फिल्म्स, ये सब केस के नाम पूछेंगे। इफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स, ये नाम याद रखना है, गिलफर्ड मोटर, कॉर्नर ब्रदर्स, एफजी फिल्म्स, वेरी फेमस दिनशो मानेकजी पतित। इन वन ऑफ द एग्जाम सिर्फ ये वाले केस पूछ लिया 3-4 मार्क्स को, कि बहुत ही अमीर बंदा था, उसको बहुत सारे पैसे आ रहे थे और उसे टैक्स नहीं भरना था। तो उसने क्या किया, टैक्स बचाने के लिए, या उल्टा बोलते हैं टैक्स चुराने के लिए, उसने 4 कंपनीज क्रिएट कर ली। उस कंपनी का बाकी कोई पर्पस नहीं था, सिर्फ टैक्स की चोरी, इतना ही पर्पस था। दैट मीन्स द क्रिएशन ऑफ कंपनी वाज फ्रॉडुलेंट टू चीट द टैक्स अथॉरिटीज। तो उनको मालूम पड़ा, उन्होंने बंदे को बोला भाई तू स्मार्ट है, हम डबल स्मार्ट है, टैक्स भर। सो दिनशो मानेकजी पति, दैट वाज द केस। प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर, अब ये लेबर को चूना लगा रहे थे, वर्कर्स को। तो होता कैसे है, आई गिव एग्जांपल, कि इंडिया में जो बहुत सारे जो लेबर लॉज है उसमें बोला है कि अगर आपका नंबर ऑफ वर्कर्स आर मोर देन एक्स वाई जेड, सपोज इफ योर वर्कर्स आर मोर देन 20, इफ योर वर्कर्स आर मोर देन 50, तो आपको उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज देनी पड़ती है, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा वेलफेयर का खर्चा करना पड़ता है। तो ये कानून ने बोला है। तो हमारे इन्होंने क्या किया, उसकी कंपनी बढ़ रही थी, नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा चाहिए थे, सपोज 20 के ऊपर जा रहे हैं, उसने क्या किया, एक दूसरी कंपनी खोल ली। ठीक है, सो जहां 20 के अंदर वर्कर यहाँ डाल दिए, 20 के ऊपर वर्कर वहां डाल दिए, और बोला सर दोनों अलग कंपनी है, दोनों में 20 के नीचे है, बट फाइनली बिजनेस वही था, काम वही कर रहे हैं। तो उसने अलग कंपनी क्यों क्रिएट की, ओनली टू अवॉइड द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। सी कैसा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये कंफ्यूजन आप मत रखो, कि जब जेन्युइन बिजनेस लॉस है, मतलब मैं कुछ भी फ्रॉड नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, और सच में मेरा बिजनेस लॉस में चला गया, तो वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील नहीं होगा। सोलोमन में नहीं हुआ था, बिकॉज सोलोमन केस में वो जेन्युइन लॉस था,
वो ईमानदार बंदा था जो लॉस में चला गया। और ये जो एग्जाम्पल्स है सामने अपने स्क्रीन पे, ये सब चोर लोग हैं। तो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील तभी होता है जब द कंपनी इज क्रिएटेड, द कंपनी इज यूज्ड मेनली फॉर फ्रॉडुलेंट इलीगल चीटिंग एक्टिविटीज। इन केस ऑफ जेन्युइन, असली ईमानदारी से हुआ लॉस, उसमें ये नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रखो। सो क्वेश्चन जब भी आएगा आप उसमें देखो कि क्या वो पर्पसली चीटिंग के लिए किया हुआ है या जेन्युइन है। अगर जेन्युइन फ्रॉड, सॉरी जेन्युइन फ्रॉड नहीं होता, अगर जेन्युइन लॉस है तो लिफ्टिंग द व्हील नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे केसेस हैं कि होल्डिंग है सब्सिडरी, करेक्ट, दूसरी सब्सिडरी खोल ली, क्यों? वो लाइसेंस जुटाने के लिए, जुगाड़ करने के लिए। तो ऐसे जुगाड़ ठीक है, लेकिन लीगली ये सब नहीं चलेगा। So there are 6 cases here on the screen. एग्जाम में जनरली 4 केसेस के नाम पूछते हैं, तो जो भी 4 नाम आपको अच्छे से याद हो वो आप लिख दो। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के एंगल से। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। अगेन वेरी इजी टॉपिक। सो टाइप्स ऑफ कंपनी जल्दी जल्दी करते हैं। नंबर 1, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो प्राइवेट लिमिटेड एवरीबॉडी नोज, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है, 200 में एम्प्लॉइज आर नॉट काउंटेड। मतलब जो एम्प्लॉइज भी हैं और मेंबर्स भी हैं वो 200 में नहीं होंगे, दे आर एक्सक्लूडेड। आइदर करंट एम्प्लॉय है तो भी माइनस करो, अगर पुराने एम्प्लॉय है रिटायर हो चुके हैं, ओके रिटायर हो गए बट अब भी वो मेंबर्स हैं, उन्हें भी एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल टोटल उसका काउंट चला गया है 210, लेकिन 210 में 15 एम्प्लॉइज हैं जो मेंबर्स भी, करेक्ट, टोटल मेंबर्स 210, लेकिन 210 में 15 फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय भी है, आइदर पास्ट और करंट, तो दोनों को करना है माइनस। सो 210 माइनस 15 आ गया 195, विच इज लेस देन 200। ओके, चलिए। Then second is prohibition on inviting the public. आपको पैसा लेना है आप ले सकते हो बट प्राइवेटली ले, वो आईपीओ नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, हमारे डिबेंचर खरीद लो, हमारे बॉन्ड्स खरीद लो, नॉट अलाउड, दे कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक, प्राइवेटली अलाउड। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, थोड़ी देर पहले बोला था कि आप शेयर ट्रांसफर करो बट विद परमिशन, फ्री यहाँ पे अलाउड नहीं, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, पूछ के ट्रांसफरेबिलिटी। एंड छोटी कंपनी है, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर सफिशिएंट। वेरी सिंपल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड इसमें एक और एडवांटेज है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रेम्यूनरेशन, मतलब मैनेजमेंट जो है वो जितना चाहे सैलरी, जितना चाहे फीस ले सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आता है पब्लिक लिमिटेड में। सो पब्लिक लिमिटेड मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, कैन इनवाइट द पब्लिक, सो जितने भी आपने देखा है आईपीओ, जितने शेयर मार्केट में शेयर लिस्टेड हैं वो सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। जो भी आप शेयर खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, शेयर बेचते हो, वो सब कौन है? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, एंड यहाँ पे एज आई सेड कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे एक कैप है, रिस्ट्रिक्शन है, विच इज 11% टोटल। 11% ऑफ प्रॉफिट इज द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट ले सकते हैं। थर्ड इज ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। सो 1 पर्सन, नाम ही है 1 मतलब सोल, एक ही इंडिविजुअल है, यहाँ पे नेचुरल पर्सन होना चाहिए। सी बाकी प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड में द मेंबर में भी आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी का मेंबर हो सकते हैं, बट ओपीसी में होगा एक ही, एंड वो भी होगा नेचुरल ह्यूमन बीइंग। एंड बिकॉज एक ही है कि चलो मर गए तो क्या करेंगे, इसीलिए नॉमिनी रखना कंपलसरी है, बैकअप ऑब्वियसली। देन वेदर नॉमिनी हो या वो मेन बंदा हो, दोनों क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन होने चाहिए, कंपलसरी इंडियन सिटीजन होने चाहिए। रेसिडेंट मे बी, मे नॉट बी।
एंड रेसिडेंट का डेफिनेशन सिंपल है कि वो फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज से ज्यादा अगर है इंडिया में तो उनको बोलेंगे रेसिडेंट। तो रेसिडेंट हो या ना हो दैट्स ओके, बट क्या कंपलसरी है, दे शुड बी इंडियन सिटीजन्स। एंड ओपीसी के लिए दो बिजनेसेस आर नॉट अलाउड। क्या नॉट अलाउड है, फाइनेंस कंपनी और दूसरा चैरिटी। सेक्शन 8 जो भी आएगा, सो सेक्शन 8 चैरिटी बिजनेस नॉट अलाउड एंड फाइनेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉट अलाउड, बाकी ओके है। एंड ये कन्वर्जन भी अलाउड है, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है वो पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ओपीसी है वो प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल दीज कन्वर्जन आर अलाउड बेस्ड ऑन लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो अभी हमने नाम लिया सेक्शन 8, आ गया सेक्शन 8। ये सेक्शन याद रखेंगे, ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी याद है, बताना क्या है इसमें। सो सेक्शन 8 इज नॉन प्रॉफिट मोटिव, बोलते हैं उसे चैरिटी मोटिव या नॉन प्रॉफिट मोटिव। हमने कंपनी शुरू की है बट हमें प्रॉफिट कमाने की कोई इच्छा नहीं है, बिकॉज हमारा काम क्या है, हमने कंपनी शुरू की है फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, प्रमोशन ऑफ साइंस, एजुकेशन, डांस, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो प्रॉफिट का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट होता भी है, सेकेंड पॉइंट देखो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोहिबिटेड। आप उस प्रॉफिट को एंजॉय मतलब शेयर होल्डर में बांट नहीं सकते, वो प्रॉफिट फिर से आपके बिजनेस के लिए यूज होगा। सो डिविडेंड इज प्रोहिबिटेड फॉर अ सेक्शन 8 कंपनी। सेकेंड, सेक्शन 8 कंपनी शुरू करने के लिए आरओसी तो ठीक है, बट यू ऑल्सो रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, उनका लाइसेंस चाहिए। कुछ भी चेंजेस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना जरूरी है। एंड सच कंपनी ऑल्सो कैन कन्वर्ट फ्यूचर में विथ अप्रूवल्स, ऑब्वियसली जहां जहां से आपने बेनिफिट लिए हैं, गवर्नमेंट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, चैरिटी कमिश्नर हो गया, जहां जहां से आपने फायदे लिए हैं, बिकॉज चैरिटेबल कंपनी है उनको बहुत सारे सब्सिडी मिलते हैं। तो अगर आप खुद को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू प्रॉफिट मोटिव कंपनी, सो यू टेक अप्रूवल्स ऑफ ऑल ऑफ देम एंड देन यू कैन डू सो। अगर आप गड़बड़ करते हो एज अ चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इफ यू आर इनटू मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड वगैरह होता है, देन द गवर्नमेंट कैन कैंसल योर लाइसेंस। ओके, दे कैन फोर्स यू टू मर्ज विथ अनदर कंपनी जिसका मैनेजमेंट अच्छा है। दे कैन रिमूव द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड वर्स्ट केस सिनेरियो दे कैन ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। प्लस जो अगर फ्रॉडुलेंट लोग हैं उनको जेल भेज सकते हैं, करेक्ट, फाइन लगा सकते हैं if they enter into or if they commit any frauds or malpractices वगैरह वगैरह। सो सेक्शन 8 कंपनी पे ना गवर्नमेंट का बहुत से बारीक ध्यान रहता है। ओके, देन सेक्शन 8 कंपनी के बाद आता है स्मॉल कंपनी। एग्जाम के एंगल से बढ़िया सेक्शन पे याद रखो 2 सब सेक्शन 85 स्मॉल कंपनी। द स्मॉल कंपनी, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ, मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए सबसे पहले। एंड स्मॉल कंपनी मतलब उसका टर्नओवर वगैरह कुछ लिमिट से नीचे है, कैपिटल कुछ कम है। सो स्मॉल कंपनी का पर्पस क्या है कि दे शुड, बिकॉज द साइज इज लेस, उनको थोड़े से रिलैक्सेशन इन कंप्लायंसेस, थोड़े से ढील देने के लिए सच कंपनीज आइडेंटिफाइड। सो क्या होने चाहिए, पेड अप कैपिटल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़ रुपीज। अब ये जो लिमिट है 4 करोड़, ये है अपने मई 26 एग्जाम के लिए तक। जो लोग बाद में अटेम्प्ट देने वाले हैं, जो मई के बाद एग्जाम देने वाले हैं, सितंबर में एग्जाम देने वाले हो या उसके बाद देने वाले हो, देन द लिमिट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, सो पहले मैं पुराने लिमिट बता रहा हूं कि जिनका एग्जाम मई 2026 में है, सो उनके लिए पेड अप कैपिटल स्मॉल कंपनी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़ एंड द टर्नओवर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40 करोड़। तो ये 4 करोड़ एंड 40 करोड़ किसके लिए है, ये है मई 2026 एग्जाम के लिए। बट इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम आफ्टर मई 26, दैट इज सितंबर हो गया, अगले साल हो गया, 27 में हो गया वगैरह, सो लिमिट क्या चेंज हो गए हैं, अभी ये जो 4 करोड़ है इसके बदले अभी लिमिट बढ़ के हो गया है 10 करोड़, एंड ये जो 40 करोड़ है ये लिमिट बढ़ के हो गया है 100 करोड़। बट ये किसके लिए है, आई रिपीट, दिस इज फॉर
सितंबर 2026 एग्जामिनेशन एंड उसके बाद। ठीक है, सो दीज लिमिट्स आर फॉर द फ्यूचर। अभी के लिए इसको हटा देते हैं। सो अगर हमारा मे एग्जाम है, सो मे एग्जाम के लिमिट्स आर 4 crores 40 crores। ठीक है, सो इससे अगर ज्यादा ऊपर जा रहा है देन आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। प्लस स्मॉल कंपनी और क्या नहीं हो सकते? सो पब्लिक लिमिटेड कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी है मे नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है मे नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 वाली है मे नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि इनको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। The next type of company is based on control. होल्डिंग सब्सिडरी, नाम में होल्डिंग, एक कंपनी दूसरे को होल्ड कर रही है। सो होल्डिंग इज इन कंट्रोल, और जिसको कंट्रोल करती है उसे बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। और कंट्रोल कैसे करते हैं? नंबर 1, उसके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब डिसीजन मेकर। मैं डिसीजन मेकर को ही कंट्रोल करता हूँ, मतलब मैं कंपनी को कंट्रोल करता हूँ। मोर देन 50% वोट्स मेरे पास है, मतलब मैं कंपनी को कंट्रोल करता हूँ। एंड सब्सिडरी ऑफ मेरी सब्सिडरी, दादाजी पापा को कंट्रोल करते हैं, पापा मुझे कंट्रोल करते हैं, मतलब दादाजी मुझे कंट्रोल करते हैं। ए कंट्रोल्स बी, बी कंट्रोल सी, सो ऑटोमेटिकली ए कंट्रोल्स सी। वैसे भी आप सब्सिडरी बना सकते हो। एंड सब्सिडरी जैसा ही दूसरा एक छोटा कंपनी है जिसे बोलते हैं एसोसिएट कंपनी, बट इसमें 50% नहीं है, इसमें है 20%। और यहाँ पे वर्ड उन्होंने बोला है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी पे 20% अबाउ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। सिग्निफिकेंट मतलब मैं, एक होता है कंट्रोल, कंट्रोल मतलब ऐसा करना है उसको करना है, एंड इन्फ्लुएंस मतलब मैं ऐसे उसको बोला ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं हम उस पर। फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट, पेरेंट्स का हम पे कंट्रोल है लेकिन गर्लफ्रेंड का हम पे इन्फ्लुएंस है। गर्लफ्रेंड बोलती है तुमने अगर ऐसा किया तो मुझे अच्छा लगेगा, तो बॉयफ्रेंड बोलता है हाँ हाँ करता हूँ यस, करेक्ट, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना। सो 20% से ज्यादा इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है? आइदर द इन्फ्लुएंस मे बी एज अ सप्लायर कस्टमर, जरूरी नहीं कि आपके पास शेयर्स हो। इमेजिन मेरा कोई कस्टमर है, ठीक है, मेरा कस्टमर है और उसका 40% सामान मेरे से ही आता है, करेक्ट, मैं सप्लायर हूं उसका, एंड हिज 40% इज, आई एम द ओनली सप्लायर, बाकी सब छोटे छोटे हैं लेकिन मैं 40% उसको सप्लाई करता हूँ। तो मतलब मेरे पास इन्फ्लुएंस है ना, उस पर मैं कुछ प्रेशर डाल सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंस। शेयर्स हो जरूरी नहीं है। लेकिन सब्सिडरी है तो सब्सिडरी में क्या बोला है? 50% वोटिंग पावर, एंड वोटिंग पावर आता है शेयर से। एंड एसोसिएट के लिए, एसोसिएट में जॉइंट वेंचर भी आते हैं, सो एसोसिएट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर जेवी, so associate is 20%. So whether every associate is subsidiary? Answer is no. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेन टाइप ऑफ कंपनीज हो गए। अभी आगे के सिंपल है। गवर्नमेंट कंपनी, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, यहाँ पे है 51% वोटिंग पावर। 51 याद रखो, सब्सिडरी में था 50 एंड गवर्नमेंट कंपनी में 51% वोटिंग पावर इज विथ आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों मिला के। एंड रिमेंबर गवर्नमेंट के पास वोटिंग पावर होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। प्लीज रिमेंबर, गवर्नमेंट कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। फॉरेन कंपनी, इजी, इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड कहाँ है भाई? ये लोग रजिस्टर्ड है सपोज मलेशिया, सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, लेकिन बिजनेस कहाँ कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं इंडिया। इधर फिजिकली उनके शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, या इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी होता है, ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेडिंग, B2B, B2C। सो दे हैव अ बिजनेस इन इंडिया, तो उनको क्या करना चाहिए? दे हैव टू फॉलो विद इंडियन लॉज। उनका जो इंडिया का बिजनेस है उसका ऑडिट कौन करेगा? इंडियन सीए ऑडिट करेगा। जो उनका इंडिया के अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करने पड़ेंगे अप्रैल टू मार्च। वहां के यूरोप के हो सकते हैं जनवरी टू दिसंबर, वहां के हो सकते हैं जुलाई टू जून,
लेकिन जो आपका इंडिया का बिजनेस है उसके लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च. सो सच रूल्स दे हैव टू फॉलो. डॉर्मेंट कंपनी. डॉर्मेंट ये नाम नॉर्मली वोल्केनो में यूज करते हैं. डॉर्मेंट वोल्केनो मतलब बहुत सालों से फटा ही नहीं है, डॉर्मेंट है, सो रहा है. वैसे ही कंपनी भी सो रही है. नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है. हमने मतलब कुछ बिजनेस के लिए, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हमने कंपनी शुरू की थी. एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ना ईरान से इंपोर्ट करने के लिए बिजनेस शुरू किया था. ठीक है, बिजनेस शुरू किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और ईरान और यूएस का वॉर शुरू हो गया. मतलब मेरा क्या हो गया, काम ठप हो गया. उधर वो यूक्रेन और रशिया का वॉर 3 साल से चल रहा है. मतलब इमेजिन, मैंने तो बिजनेस शुरू किया था यूक्रेन से कुछ बिजनेस करने के लिए, कंपनी शुरू की थी 4 साल पहले और 3 साल से ठप पड़ी है. क्यों? वॉर चल रहा है. सो कंपनी वॉज क्रिएटेड फॉर अ प्रोजेक्ट और फॉर सम रीजन कुछ नहीं हो रहा है. मैं बाकी ढूंढ रहा हूँ कि और कहीं से हो सकता है क्या, बट नहीं हो रहा है. सो नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस. सो आई अपील टू द आरओसी. मैं आरओसी को लेटर भेजूंगा, अप्लाई करूंगा कि ऐसा प्रॉब्लम है तो मुझे थोड़ी सी सहूलियत दीजिए, थोड़े कंसेशंस दीजिए इन लीगल कंप्लायंसेस. सो डॉर्मेंट कंपनी का पर्पस क्या है? अप्लाई फॉर लीगल कंप्लायंसेस रिडक्शन. Then next is company based on liability. Already we discussed. Limited by shares, limited by guarantee, जो वाइंडिंग अपने प्रॉमिस करते हैं. और ये भी अलाउड है, बट जनरली कौन करेगा ऐसा अनलिमिटेड? खुद से कौन करेगा? कोई नहीं करेगा. बट लीगली अलाउड है, अनलिमिटेड कंपनी आप बना सकते हो. ओके. देन creation, how it is created. Chartered company created by the British Charter, Queen वगैरह वगैरह. Statutory company created by the Parliament, Special Act, SEBI, 1992, RBI Act, LIC Act, created by the government. And registered company, that is जो हम लोग अपना ROC अप्लाई करके जो करते हैं, that is registered company. Then listed company which is listed on any recognized stock exchange in India, जो SEBI के अंडर कंट्रोल, SEBI रूल्स फॉलो करके वो लिस्ट होती है. और जो कंपनी लिस्टेड नहीं है वो है अनलिस्टेड कंपनी. सिंपल. Yes, now let us go to the next part, that is incorporation of a company. Now incorporation में दो टाइप के सवाल आ सकते हैं. एक आता है related to promoters, कि promoters कौन होते हैं, उनका क्या रोल है, उनकी क्या liability है. That can be one of the question. And second question is a direct question, that is what are the forms to be filled. Okay, section 7 subsection 1 वाला वो अलग सवाल है. And promoters definition is section 2 subsection 69. ठीक है, दोनों सवाल देखते हैं जो एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं, इनकॉर्पोरेशन से. चलिए, फर्स्ट इज प्रमोटर. प्रमोटर को हम मतलब कॉमनली, लॉ ने ऐसे कुछ नहीं बोला है, बट कॉमनली हम लोग बोलते हैं प्रमोटर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ अ कंपनी. ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज द प्रमोटर टेक्स ऑल द एफर्ट्स, ही टेक्स ऑल द brings the ideas and formalities and statutory declaration, filing, सब प्रमोटर करता है. इसीलिए ऐसे प्यार से उसे बोलते हैं that he is the father of the company. बट लीगली वो कौन है, ये इंपॉर्टेंट है जानना. सो दिस सेक्शन यू हैव टू कीप इन माइंड. सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 सेज दैट प्रमोटर मींस अ पर्सन. तीन कंडीशन दी है. नंबर 1, हु इज नेम्ड एज सच एंड हु इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी. इन सिंपल लैंग्वेज, कंपनी जिसे अपना प्रमोटर मानती है वो प्रमोटर है. इफ यू सी द एग्जैक्ट मीनिंग, हु इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस. नेम मतलब जिसका नाम लिखा गया है. आइडेंटिफाइड इन द एनुअल रिटर्न, अगेन जिसको आइडेंटिफाई मतलब जिसका नाम लिखा गया है कि ये हमारा प्रमोटर है. एंड प्रमोटर मे बी अ नेचुरल पर्सन, प्रमोटर मे बी एन आर्टिफिशियल पर्सन. रिमेंबर, सो एक कंपनी का प्रमोटर मे बी अनदर कंपनी, और एक कंपनी का प्रमोटर मे बी एन LLP, और एक कंपनी का प्रमोटर मे बी एन इंडिविजुअल. Okay, so that means promoter may be a human being, promoter may be a company, promoter may be an LLP, possible है. So जिसे कंपनी ने अपने एनुअल रिटर्न में या प्रोस्पेक्टस में आइडेंटिफाई किया है, जिसका नाम लिखा है, वो कंपनी का प्रमोटर कहलाएगा. और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है?
who has control over the company. Okay, important word, who has control over the company either as a shareholder or as a director or otherwise. So promoter कौन है? Second definition कि who is in control of the company. इसका मतलब क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है कि आपको पता है कि कंपनी का कंट्रोल बदल भी सकता है. सी वन कंपनी कैन टेक ओवर अनदर कंपनी. सो अगर टेक ओवर कर लिया तो उसने कंपनी शुरू किसी और ने की थी, बट अब कंट्रोल मेरे पास है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज माइंड ट्री. ना माइंड ट्री उसको एक्वायर कर लिया एलएनटी ने. करेक्ट. सो एलएनटी ने माइंड ट्री को कर लिया एक्वायर. मतलब सारा कंट्रोल अब कहाँ चला गया? एलएनटी के पास चला गया. मतलब पहले प्रमोटर कोई और था, अब प्रमोटर बदल गए. So please keep in mind, promoters of a company may change because the control of a company may change from one person to another. And third point legally says that on whose advice and directions and instructions the company board is accustomed to act. मतलब ये जो लोग हैं, ना उनका नाम लिखा है ना उनके पास शेयर्स है, नाम भी नहीं है, शेयर्स भी नहीं है, लेकिन उनका कहना डायरेक्टर्स मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एंड इट्स अ कंप्लीटली फैमिली रन कंपनी. ठीक है. अब कंपनी में 3-4 भाई हैं, वो सब चला रहे हैं, उनके बच्चे हैं वो चला रहे हैं, एकदम बढ़िया प्रॉफिटेबल कंपनी है. ठीक है. लेकिन अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, कुछ भी होता है, तो वो सारे लोग ना अपने दादाजी को पूछते हैं, दादाजी के एडवाइस लेते हैं. द क्वेश्चन इज वेदर दादाजी का नाम लिखा है क्या प्रोस्पेक्टस में? द आंसर इज नो. क्या दादाजी डायरेक्टर है कंपनी के? द आंसर इज नो. दादाजी के पास शेयर्स हैं? द आंसर इज नो. लेकिन हर इंपॉर्टेंट डिसीजन दादाजी को पूछ के लिया जाता है, and that makes him in the position of a promoter, because the definition, the legal definition says on whose advice the board of directors are accustomed मतलब normally, रोजाना उनका सुनते हैं. So in that case a promoter ऐसा भी हो सकता है कि ना वो डायरेक्टर है, ना वो शेयर होल्डर है, ना उसका नाम लिखा है, फिर भी वो प्रमोटर की कुर्सी पे बैठ सकता है based on the legal definition. So this definition you have to keep in mind. Then थोड़ा सा भी सिंप्लीफाइड में जाते हैं. प्रमोटर कंसीव्स द आइडिया. उसको दिमाग में आता है ऐसा बिजनेस करे, कि परफॉर्म द प्रिलिमिनरी ड्यूटीज वगैरह वगैरह. यस, बट ये देखिए, प्रमोटर इज नाइदर एन एजेंट नॉर ट्रस्टी ऑफ द कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन. जब तक कंपनी क्रिएट नहीं होती है, प्रमोटर एजेंट बन ही नहीं सकता, बिकॉज एजेंट के लिए प्रिंसिपल चाहिए, ट्रस्टी के लिए ऑथर चाहिए. सो जब तक कंपनी क्रिएट नहीं होती, promoter is personally liable. He is neither an agent nor he is an employee nor he is a trustee, because employee तभी होगा ना जब employer है, और employer कौन है? कंपनी. बट कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ है. कंपनी जन्म ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे बोलेंगे कि आप एम्प्लॉय? से सिंपल सा है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है, वो हस्बैंड एंड वाइफ बिकम फादर एंड मदर ऑन द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. सो जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, आप उनको माता पिता नहीं बोल सकते, तब तक वो सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है. जब भी बच्चे का जन्म होने वाला होता है, आपने सुना होगा मूवीज में वगैरह, तो बोलते हैं अरे आप माँ बनने वाले हो, अरे आप बाप बनने वाले हो, सीधा वर्डिंग, आप माँ बनने वाले हो, अभी तक नहीं है. सेम थिंग, इफ द प्रमोटर्स आर डूइंग ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, जब तक वो कंपनी इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड नहीं होती, तब तक प्रमोटर्स आर नथिंग विद द कंपनी, नो रिलेशनशिप, because the company is not in existence. So nothing legal, no agent, no trustee, no employee. फिर क्या रिलेशनशिप है? एक रिलेशनशिप है, उसको बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप. फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट. सो जैसे पेरेंट्स सब कुछ करते हैं अपने होने वाले बच्चे के लिए, वैसा ही प्रमोटर भी ऑनेस्टली सब कुछ करता है कंपनी के लिए. एंड द वर्ड ऑनेस्टली मतलब बोनाफाइड फिड्यूशरी ट्रस्ट. अगला पॉइंट आ गया, ये याद रखना है, फिड्यूशरी रिलेशन. दैट मीन्स प्रमोटर जो भी करता है उसे पूरा डिस्क्लोजर, ही शुड नॉट अर्न एनी सीक्रेट प्रॉफिट.
सी द वर्डिंग, ही शुड नॉट अर्न सीक्रेट प्रॉफिट। इसका मतलब है अगर उसे प्रॉफिट होता है तो उसे वो डिस्क्लोज करना है, दैट्स ओके। इनकॉर्पोरेशन में प्रमोटर तो प्रॉफिट हो सकता है, द ओनली थिंग इज उसने वो प्रॉफिट डिस्क्लोज करना चाहिए टू द सब्सक्राइबर्स, टू द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, देन इट इज वैलिड। लेकिन अगर डिस्क्लोज नहीं किया, छुपा छुपा के प्रॉफिट निकाल लिया, देन प्रमोटर्स आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड। So I'll repeat, whether promoters are allowed to make profit during incorporation, the answer is yes. The only condition is they should disclose the profits, the fact to the directors and subscribers. And अलग क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का छोटा सा आता है कि इनकॉर्पोरेशन के पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले लॉयर को कांटेक्ट किया था, उसके फीस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, उसके चार्जेस, आरओसी फीस भरे, उसके चार्जेस, ये पैसा कौन भरेगा? हु इज लायबल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन? द आंसर इज अगेन सिंपल, प्रमोटर्स। रीजन, कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ है ना, तो अगर कंपनी का जन्म नहीं हुआ तो कंपनी लायबल कैसे हो सकते हैं? एंड देयरफॉर promoters are personally liable for all the pre-incorporation contracts. So that is about promoters. So इस पे डेफिनेशन याद रखो, एंड फिड्यूशियल रिलेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, इस पे सवाल आ सकता है ना। इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर देखते हैं अभी। सो एक हो गया प्रमोटर, एंड नाउ विल सी द प्रोसीजर। चलिए प्रोसीजर में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले है प्रिपरेशन एंड अप्रूवल, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहली स्टेप है कि जो भी पहले डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, बिकॉज कंपनी शुरू कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स तो चाहिए, तो डायरेक्टर्स मस्ट हैव अ डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर नहीं है तो उसे अप्लाई कर लो, अगर है तो बढ़िया। सेकेंडली, आपके पास जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर, बिकॉज आजकल क्या है, सब ऑनलाइन फाइलिंग है, सब ऑनलाइन खेल चल रहा है, तो ऑनलाइन के लिए डिजिटल सिग्नेचर डीएससी सर्टिफिकेट उनको लेना चाहिए। ऑलरेडी है बेस्ट, नहीं है अप्लाई करो, सिंपल सा काम है। देन कंपनी की शुरुआत ही होती है, आपको आइडेंटिफाई करना है कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। Very important, because that is the first clause. What is the name of the company? And the name should be unique. It should not be same as any other resembling. Correct? सिर्फ घुमा फिरा के किसी ने बोला एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स, हमने बोला कंसल्टेंट्स एंड एडवाइजर्स, नहीं चलेगा। प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स, हमने बोला डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स, नहीं चलेगा। अगर वो नाम किसी का ऑलरेडी ट्रेडमार्क में है तो वो नाम नहीं चलेगा। अगर उस नाम से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहा है, ऐसा नाम नहीं चलेगा, अनलेस गवर्नमेंट का लेटर है आपके पास। सो रिजर्विंग द नेम इज इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड नाउ वो भी इजी हो गया है, अभी आप एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप नेम सिलेक्शन अपने चॉइसेस डाल सकते हो, और भी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक है, वो बताएगा ये नाम चलेगा नहीं चलेगा। बिफोर दीज थिंग्स इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस कि आरओसी को नाम दो, फिर आरओसी चेक करके आपको बताता था वगैरह। अभी इजी हो गया लाइफ। सो आपको नाम बुक करना पड़ता है, इट इज वैलिड फॉर 20 डेज। सो 20 दिन में आपको बाकी सारे फॉर्मेलिटीज, फाइलिंग वगैरह पूरा करना जरूरी है। सो फर्स्ट हो गया अपना डिन ले लिया, डिजिटल सिग्नेचर, नेम डाल दिया। देन यू ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या करना पड़ेगा? मेन इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये दो पहले करने हैं। सो मेमोरेंडम इज द मेन फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है, इसमें सारे क्लॉजेस है, नेम क्लॉज, एड्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। आर्टिकल्स आर इंटरनल मैनेजमेंट, उसमें रूल्स रेगुलेशंस ऑफ कंपनी, मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा। Subscribers will sign them, obviously. Subscribers are the ones who sign the memorandum and articles. Now ये होगा अगला प्रोसेस, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ दिस क्वेश्चन दे विल आस्क फॉर 5, 6, 7 मार्क्स, पहले पूछ चुके हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ द फाइलिंग क्या क्या करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली मेमोरेंडम, आर्टिकल्स तो है ही, प्लस आपको देना पड़ता है डिक्लेरेशन बाय अ सीए, सीएस प्रैक्टिसिंग या लॉयर कि ऑल द कंप्लायंसेस आर फुलफिल्ड, ऐसा एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक है। देन जो पहले डायरेक्टर होने वाले हैं उनको एफिडेविट देना पड़ता है
कि हमारे अगेंस्ट कोई कोर्ट केसेस नहीं है, हम लोग इनकॉर्पोरेशन फ्रॉड के केसेस हमारे अगेंस्ट नहीं है, एंड सो ऑन, ऑल इन्फॉर्मेशन इज ट्रू एंड फेयर. सो डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन एफिडेविट हैज टू बी फाइल्ड. अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस फिक्स है तो वो डाल दो. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रजिस्टर्ड एड्रेस इज नॉट फाइनलाइज्ड, उसके लिए और 30 दिन का टाइम मिलता है. लेकिन अगर वो फाइनल नहीं है तो तब तक किससे कांटेक्ट करें, तब तक कहाँ पे लेटर भेजे, ऐसा एक अल्टरनेट एड्रेस भी देना पड़ता है. देन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आर गोइंग टू साइन द मेमोरेंडम आर्टिकल्स, उनकी डिटेल्स देनी पड़ती है कि वो उनका नाम क्या है, नेशनैलिटी क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनके पैन आधार. बिकॉज नेशनैलिटी अभी इंपॉर्टेंट हो गया है. बिकॉज सब्सक्राइब अगर चाइनीज हैं, सब्सक्राइब अगर बांग्लादेश के हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है. एंड टू आइडेंटिफाई द पीपल, याद है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, टू आइडेंटिफाई द पीपल बिहाइंड द कंपनी, इसलिए नेशनैलिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड देन फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होने वाले हैं, वो और कहीं पे भी डायरेक्टर्स हैं क्या, या और कहीं वो पार्टनर्स हैं क्या, ये सारा इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइल. सो दिस इज अ 7 marks क्वेश्चन. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1. देन रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है आपको. Now registration fees will depend on the authorized capital. जितना authorized capital ज़्यादा होगा उतने registration fees will be higher and vice versa. And last step, if everything is fine, then अपना जो ROC है, registration procedure है, authority है, they will check everything and they will give you a certificate of incorporation. वहां पे मतलब इनसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा ये कंपनी का नाम है, ये इस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है. प्लस आपको एक नंबर दिया जाएगा CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. 21 डिजिट है. हर डिजिट का मीनिंग है. एवरी डिजिट पता है आप कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड हो, कौन से ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका बिजनेस क्या है उसका भी कोड है, आप लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो प्राइवेट लिमिटेड हो, उस हर 21 डिजिट में ना हर डिजिट का एक मीनिंग है. सो सच नंबर विल बी इशूड टू यू. एंड देन लास्ट स्टेप इज कमेंसमेंट बिजनेस. कमेंसमेंट के लिए 2 ही स्टेप चाहिए कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं दे हैव टू टेक शेयर्स, एटलीस्ट एक शेयर सब्सक्राइबर ने लेना चाहिए. तो यू जस्ट हैव टू फाइल अ ऑडिटर्स सर्टिफिकेट कि हर सब्सक्राइबर ने एक एक शेयर लिया है, बैंक में पैसा आया है, ये प्रूफ देना चाहिए. एंड सेकेंड, आपको अगर पहले एड्रेस फाइनल नहीं होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस, तो वो आप फाइनल कर दो. ये 2 चीजें आप सबमिट करो एंड देन यू आर फ्री टू स्टार्ट योर बिजनेस, फ्री टू टेक लोन्स, फ्री टू डू एवरीथिंग जिसके लिए आपने कंपनी शुरू करी है. सो दैट इज द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस. इसमें एक ही सवाल आएगा मेनली, दैट इज डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1. या फिर छोटा सवाल, नेम आइडेंटिटी नेम सिलेक्शन के लिए क्या क्या होने चाहिए क्राइटेरिया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ना सपोज कंपनी में ओके उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट दे दी, गलत डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट देके कंपनी को रजिस्टर करवा लिया, एंड देन बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये तो सब फ्रॉड करके कंपनी क्रिएट किया है. सो मैटर चला जाएगा हायर अथॉरिटी, मतलब जाएगा NCLT के पास. सम टाइम बैक वी सॉ NCLT इज द जुडिशियल बॉडी फॉर कंपनी मैटर्स. सो NCLT के पास ये चला गया कि भाई फॉल्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब झूठे डॉक्यूमेंट देके फ्रॉड करके ये कंपनी क्रिएट की गई है, सो वो क्या क्या कर सकते हैं. दिस इज अनदर 3 marks क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड, पूछा गया है, फिर से आ सकता है. सो व्हाट आर देयर पावर्स, सो व्हाट ट्रिब्यूनल में डू. नंबर 1, दे में चेंज द मेमोरेंडम, बिकॉज अगर वहां पे गड़बड़ होगी तो दे हैव द पावर टू चेंज मेमोरेंडम, चेंज आर्टिकल्स. दे हैव द पावर टू चेंज द मैनेजमेंट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है वही फ्रॉडुलेंट है, उनको बदल सकते हैं, दैट इज द पावर. लाइबिलिटी ऑफ शेयर्स होल्डर्स कैन बिकम अनलिमिटेड. लिमिटेड लाइबिलिटी से किया था, बट बिकॉज फ्रॉड किया दे कैन मेक द लाइबिलिटी अनलिमिटेड. वर्स्ट केस रिमूवल, स्ट्राइक ऑफ, कंपनी का नाम ही उड़ा दो. एंड उससे पहले अगर कुछ एसेट्स वगैरह लिए होंगे देन वाइंडिंग अप, सेल द एसेट्स, पे द लाइबिलिटी एंड फाइनली नाम उड़ा दो. सो ट्रिब्यूनल हैज दीज पावर्स. सो 3 marks क्वेश्चन, 4-5 पॉइंट्स है. ठीक है, सो लिखोगे कैसे, पहले इनकॉर्पोरेशन का लिटिल स्मॉल इंट्रोडक्शन, कैसे ऐसा स्टेप्स है, एंड देन डायरेक्टली गड़बड़ होती है तो NCLT के पास जाएगा, NCLT की ये पावर्स हैं.
And what is the effect of incorporation? Section 9. The moment company is incorporated, number one, it is a body corporate. जो हम पहले टाइम से बोलते आ रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन. जो सब्सक्राइबर्स है, जिन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम आर्टिकल्स, दे आर अज्यूम टू बी द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी. एंड जैसे ही कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, दे कैन एक्वायर एसेट्स, दे कैन बोरो मनी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जो भी हमने फीचर्स में देखा था, ये सब कंपनी कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? अपॉन इनकॉर्पोरेशन. दैट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ओके, नाइस. चलिए आगे जाते हैं. सिंपल, सबसे इजीएस्ट. व्हाट इज शेयर कैपिटल? सो कैपिटल, वी नो कैपिटल इज द मनी रेज्ड बाय अ कंपनी. सबसे पहले आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल, ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल. एंड इसका मतलब क्या है? दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी इशूड. अगर ऑथराइज कैपिटल में लिखा है कि वी हैव 1 लाख शेयर्स, तो मैक्सिमम 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं. अगर ऑथराइज में लिखा है वी कैन हैव 10 लाख इक्विटी शेयर, तो आप 10 लाख इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं. उससे कम यस, उससे ज्यादा नहीं. इफ यू वांट टू गो आउटसाइड द ऑथराइज, क्या करो? सिंपल है, अल्टर द मेमोरेंडम. मेमोरेंडम अल्टर करो एंड देन यू गो बियॉन्ड द ऑथराइज. ऑथराइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, आपको इंटर में आएगा. अल्टरेशन एंड ऑल दिस थिंग्स वी लर्न इन द इंटरमीडिएट. देन इशूड कैपिटल. सो मैक्सिमम इतने हैं. इशूड मतलब एक्चुअल. मुझे अलाउड थे 1 लाख शेयर इशू करना, मैंने एक्चुअली किए हैं 80,000. ओके, एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे 1 लाख लिख देता हूँ. सो मैक्सिमम अलाउड वाज 1 लाख, एक्चुअल मैंने इशू किए हैं 80,000. अब जितने मैंने इशू किए हैं, जरूरी है कि पब्लिक सबको ले लेगा? द आंसर इज नो. सो पब्लिक ने उसमें से कितने लिए, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड. सो सब्सक्राइब्ड इज 78,000. सो अलाउड थे 1 लाख, दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड. मुझे अभी इतने नहीं चाहिए, मैंने किए 80,000, लेस देन दैट. ओके, पब्लिक ने सबको अप्लाई नहीं किया. सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने उसके लिए पूछा नहीं है. कितने को पूछा है? 78,000 शेयर्स को पूछा है. आई एम हैप्पी विद इट, आई एम हैप्पी विद इट. ठीक है, लेकिन 78,000 शेयर्स हैं एंड सपोज फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन मुझे सारे 10 रुपए अभी नहीं चाहिए ना. मेरा जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है इंस्टॉलमेंट में, तो मैंने क्या किया कि आउट ऑफ सपोज माई टोटल फेस वैल्यू इज से 10 रुपीज, तो आउट ऑफ 10 राइट नाउ आई वांट 6 रुपीज. उसको बोलते हैं कॉल्ड अप. सो 78,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, मैंने 10 रुपए पे इशू किया, ऐसे अज्यूम करेंगे. और मुझे अभी चाहिए 6 रुपए एंड अनकॉल्ड 4 रुपए यहाँ चले गए. आउट ऑफ 10 6 रुपए अभी दे दो, 4 रुपए बाद में दे दो, दैट आई विल टेल यू व्हेन. बढ़िया. तो 6 रुपए मैंने मांगे, लेकिन पेड अप कैपिटल उसमें से 78,000 शेयर्स में से 77,900 शेयर्स ने पैसा दे दिया, और 100 शेयर्स ने बता के भी, मांग के भी पैसा दिया ही नहीं. उसे बोलते हैं अनपेड. एंड आपने सुना होगा अकाउंट्स में दैट अनपेड जो है, इन स्पाइट ऑफ आस्किंग, दे मे बी फॉरफिटेड, दे मे बी फॉरफिटेड. और जिन्होंने पैसा दिया, पेड अप. एंड जो अनकॉल्ड कैपिटल है, अनकॉल्ड में भी एक नया पॉइंट है, रिजर्व कैपिटल. तो रिजर्व कैपिटल का मतलब है ऐसा अमाउंट जो मैं सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मांगूंगा, तब तक मैं नहीं मांगने वाला आपसे. ऐसा भी कंपनी प्रोविजन कर सकते हैं. करेक्ट. सो सी द समरी. टोटल मेरा शेयर्स थे 1 लाख, 10 रुपए पे इशू किया मैंने, ठीक है. 1 लाख शेयर ऑथराइज, एक्चुअल इशू किए 80,000, उसमें से लोगों ने अप्लाई किया 78. मैंने बोला अभी 6 रुपए दे दो, 4 रुपए बाद में. जो 4 रुपए बाद में है, उसमें से भी 1 रुपया एंड में, रिजर्व कैपिटल, बाकी 3 रुपए बीच में. एंड 78,000 ने बोला पैसे देंगे, उसमें से सिर्फ 77,900 शेयर्स पे पैसा आया, 100 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, अनपेड, विच मे बी फॉरफिटेड एज पर मैनेजमेंट डिसीजन.
So this is a broad structure of capital. Now company में have two types of capital. Equity तो compulsory है, हर कंपनी में equity रहेगा ही, लेकिन कुछ कंपनी में have another type of capital called as preference share capital. Now this is not compulsory, company may have, may not have, but अगर होता है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. ये देखिए, पहला डिफरेंस है मेनली डिविडेंड पेमेंट. इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड इज ऑप्शनल. ध्यान से देखो, इक्विटी का डिविडेंड इज ऑप्शनल बेस्ड ऑन डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन. मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट है फिर भी शायद डिविडेंड ना दे इक्विटी को. लेकिन प्रेफरेंस में देखिए, डिविडेंड इज कंपल्सरी इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट. तो बच्चों ने पूछा सर अगर लॉस हुआ तो किसको मिलेगा? आंसर इज सिंपल, दोनों को नहीं मिलेगा. बिकॉज डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. अगर लॉस ही है तो प्रेफरेंस को भी नहीं मिलेगा, इक्विटी को तो सवाल ही नहीं पैदा होता. और अगर प्रॉफिट है तो प्रेफरेंस वालों को कंपलसरी मिलेगा, इक्विटी वालों को मे भी मिलेगा. डिविडेंड रेट, इक्विटी का रेट हर साल अलग अलग हो सकता है, जबकि प्रेफरेंस का रेट इज फिक्स्ड, एक ही बार फिक्स हो जाता है कि आपको हर साल 8% से मिलेगा, खत्म. सो इस साल 8, अगले साल 8, 8, 8, 8, नो टेंशन. बट इक्विटी इस साल 10 दे दिया, अगले साल 2 ही दे दिया, तीसरे साल 20 दे दिया. इट कैन बी एनीथिंग. इक्विटी का रेट 100% हो सकता है, इक्विटी का डिविडेंड रेट 200% हो सकता है, इट 0 भी हो सकता है. बट प्रेफरेंस इज फिक्स्ड, सेम रहेगा. देन डिविडेंड प्रायोरिटी. अब नाम ही है प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस का ही मतलब है पहले ही. सो डिविडेंड हो या कैपिटल रीपेमेंट हो, वाइंडिंग अप के टाइम पे हो, प्रेफरेंस वालों को पहला पैसा वापस दिया जाएगा. सो डिविडेंड देना है पहले प्रेफरेंस. कंपनी बंद हो रही है, कैपिटल वापस देना है पहले प्रेफरेंस. बाद में अगर पैसे बचे तो इक्विटी, नहीं तो नहीं. देन ड्यूरेशन. इक्विटी इज परमानेंट कैपिटल, देयर इज नो ड्यूरेशन. लाइफ टाइम है, जब तक कंपनी चलेगी इक्विटी चलता जाएगा. लेकिन प्रेफरेंस का मैक्सिमम लाइफ इज 20 इयर्स. एंड अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है तो 30 इयर्स तक आपके शेयर हो सकते हैं, बट उसके बाद कंपलसरी रिडेम्पशन, यू हैव टू रीपे द मनी बैक. सो नॉर्मल कंपनी प्रेफरेंस का लाइफ है 20 साल. अगर इंफ्रा रिलेटेड कंपनी देन मैक्सिमम 30 साल तक आपका लाइफ है, टेन्योर है. आफ्टर दैट गिव द मनी बैक, या फिर अगर कन्वर्टिबल वगैरह होगा तो आप कन्वर्ट करो, बट दिस इज द मैच्योरिटी पीरियड. देन डिविडेंड एक्यूमुलेशन. ये भी प्रेफरेंस को ही फायदा है कि अगर इस साल लॉस हुआ तो इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगले साल प्रॉफिट हुआ तो अगले साल दोनों डिविडेंड मिलेंगे. लास्ट ईयर का भी वो एक्यूमुलेट करके आगे जाएगा और अगले साल का भी. तो ये फायदा किसको है? ये फायदा है प्रेफरेंस वालों को. सो क्यूमुलेटिव डिविडेंड ये यहाँ पे होना चाहिए, एंड डिविडेंड लैप्स ये यहाँ पे होना चाहिए. स्मॉल मिसप्रिंट हियर. ठीक है. सो डिविडेंड लैप्स किसका होता है? इक्विटी वालों का. और क्यूमुलेटिव किसका होता है? प्रेफरेंस वालों का. ठीक है. स्मॉल मिसप्रिंट, यू प्लीज कंसिडर अकॉर्डिंगली. एंड वोटिंग राइट्स, इक्विटी हैव फुल वोटिंग राइट्स, नो टेंशन. हर मीटिंग में उनको बुलाएंगे, जाएंगे, वोटिंग करेंगे. प्रेफरेंस वालों को जनरली नो वोटिंग राइट्स, उनको मीटिंग में बुलाते भी नहीं है, एजीएम में नहीं बुलाएंगे उनको, विथ एक्सेप्शंस. अब एक्सेप्शन क्या है? प्रेफरेंस को तभी बुलाते हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई पॉइंट है तो. अगर उनका प्रेफरेंस डिविडेंड चेंज करना है तो उन्हें बुलाएंगे, या रिडम्पशन के टाइम पे उन्हें बुलाएंगे, वाइंडिंग अप के टाइम पे उन्हें बुलाएंगे. बट अदरवाइज अगर उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन है ही नहीं, देन प्रेफरेंस विल नॉट बी कॉल्ड इवन फॉर द मीटिंग्स. सो 7 पॉइंट्स है. एग्जाम में क्वेश्चन में बी फॉर 4 to 5 मार्क्स, एंड देयरफॉर एनी 5-6 पॉइंट्स यू राइट करेक्टली एंड फुल मार्क्स. चलिए, द लास्ट पार्ट नाउ, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. सो मेमोरेंडम पता है हमको, इट इज द मेन फाउंडेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. कंपनी का जन्म ही क्यों हुआ है ये मेमोरेंडम पढ़ के आपको मालूम पड़ेगा. सो इट डिफाइंस एंड कन्फाइंस. सो डिफाइंस मींस कंपनी के क्या पावर्स हैं, क्या कर सकते हैं, इज डिफाइंस. एंड कन्फाइंस इज रिस्ट्रिक्शन, व्हाट कंपनी कैन नॉट डू. एंड रूल सिंपल है, जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है वो कंपनी नहीं कर सकते.
सो मेरे मेमोरेंडम में लिखा है कि मेरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल, रेसिडेंशियल वगैरह वगैरह, सब लिखा है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। और मेरे दिमाग में आया अभी नया फिल्म बनाते हैं, फिल्म प्रोडक्शन। मेरे मेमोरेंडम में फिल्म है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट स्टार्ट दैट बिजनेस अनलेस आई अल्टर द मेमोरेंडम। प्लीज रिमेंबर, कंपनी को जो भी करना है वो पहले मेमोरेंडम को अल्टर करे, उसके बाद वो कर सकते हैं। Then third important is memorandum is for the outside world, company's relationship with the external, मतलब बैंक है, क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स है, बाहर वालों को मालूम पड़ना चाहिए कि कंपनी के पावर्स क्या क्या है। So it is mainly for the external outside world. The main clauses, पहला है name clause, then state. State क्यों? Because jurisdiction. आप जिस स्टेट में हो वहां का हाई कोर्ट, वहां का आरओसी, उनका आप पे जुरिस्डिक्शन होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, पर्पस। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी मीन्स दैट अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो लाइबिलिटी क्लॉज। कैपिटल क्लॉज, कितने शेयर्स हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस भी है क्या, फेस वैल्यू कितनी है, ये सब आएगा आपके कैपिटल क्लॉज में। Then next is it is always superior. Memorandum is over and above. सबसे ऊपर आता है कंपनीज एक्ट, फिर उसके बाद आता है मेमोरेंडम, सबसे नीचे आता है आर्टिकल्स। सो मेमोरेंडम इज सुपीरियर टू द आर्टिकल्स। एंड कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। एनीथिंग आउटसाइड द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायर्स, void ab initio, not legally enforceable। ये केस का नाम याद रखना है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन वर्सेस रीश। ये लैंडमार्क केस है बिकॉज इसमें क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट था वो मेमोरेंडम के बाहर था। सारे शेयर होल्डर ने बोला वी एग्री, 100% शेयर होल्डर सेड यस, हम इसको मानते हैं, ये करना है हमको। बट कोर्ट ने बोला भाई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज आउटसाइड द मेमोरेंडम। दैट्स व्हाई इट्स अ लैंडमार्क केस कि इवन इफ 100% आर रेडी, स्टिल इट कैन नॉट बी डन बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायर्स, void ab initio। सो यहाँ पे जनता क्या कहती है, सब लोग को क्या मानना है, डजेंट मैटर, कानून के बाहर है, खत्म, अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स। दिस केस नेम यू हैव टू रिमेंबर। अल्ट्रा वायर्स इज void, void मतलब नॉट इन्फोर्सेबल। सपोज मैंने लोन लिया बैंक से और मेरे मेमोरेंडम में क्लियर लिखा है कि बोरोइंग फ्रॉम अ बैंक इज प्रोहिबिटेड, ऐसा क्लियर वर्डिंग है, बोरोइंग फ्रॉम बैंक इज प्रोहिबिटेड। और मैंने बैंक को लोन मांगा और बैंक ने दिया, अब प्रोहिबिटेड है मतलब ये लोन हो जाता है void, और मैंने वो पैसे खत्म भी कर दिए, तो बैंक मुझ पे लीगली केस नहीं कर सकता बिकॉज void है। दैट्स व्हाई इट इज लीगली अनएनफोर्सिएबल। तो इसलिए बैंक को पहले मेमोरेंडम पढ़ना था। ये देखो आउटसाइड वर्ल्ड, इसीलिए बैंक जब भी कुछ भी संबंध होगा कंपनी का, बैंक सबसे पहले बोलता है मेमोरेंडम दिखाओ। और बैंक ने पढ़ा कि लोन इज प्रोहिबिटेड, खत्म, लोन खत्म, देगा ही नहीं बैंक। लेकिन अगर बैंक से गलती हो गई, उन्होंने मेमोरेंडम ठीक से नहीं पढ़ा और लोन दे दिया, तो बैंक का लॉस, कंपनी इज नॉट लायबल टू रीपे द मनी, खत्म कर दिया पैसा हमने। इसीलिए एवरीबडी हु हैज टू डू एनी बिजनेस विद अ कंपनी, एवरीबडी मस्ट रीड द मेमोरेंडम फर्स्ट। आर्टिकल्स आर सब्सिडरी। आर्टिकल्स में क्या होता है, दे आर द बाईलॉज। बाईलॉज का मतलब क्या है, दे आर द इंटरनल मैनेजमेंट, डे टू डे कैसे करना चाहिए, कॉल ऑन शेयर्स कैसे करें, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का क्या प्रोसीजर है, मीटिंग्स का क्या प्रोसीजर है, डायरेक्टर्स का क्या रेम्यूनरेशन प्रोसीजर है, वगैरह वगैरह, सब इंटरनल मैटर्स है, इंटरनल। एंड इट इज सबऑर्डिनेट, लोअर देन द मेमोरेंडम। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज आउटसाइड द आर्टिकल्स, ठीक है, बट विद इन द मेमोरेंडम, प्लीज रिमेंबर, विद इन द मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स के बाहर चला गया, लेकिन मेमोरेंडम सुपीरियर है आर्टिकल से। सो जब तक वो मेमोरेंडम के अंदर है, शेयर होल्डर्स उसे रैटिफाई, मतलब शेयर होल्डर उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर, अगर वो मेमोरेंडम के भी बाहर गया तो शेयर होल्डर छोड़ो, अगर एक भगवान भी उसको रैटिफाई नहीं कर सकता।
because what is void cannot be implemented, cannot be enforceable even by the highest courts. लेकिन जब तक वो मेमोरेंडम के अंदर है तब तक उसे अप्रूव रेटिफाई कर सकते हैं. करेंगे इज अ चॉइस, बट एबिलिटी कर सकते हैं लीगली, यस. तो अभी हमने देखा कि जो भी बाहर वाला कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे मेमोरेंडम पढ़ना जरूरी है. तो फिर किसी ने पूछा सर ये कहाँ मिलेगा मेमोरेंडम, कौन सी दुकान में मिलेगा? सी द मोमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड, मेमोरेंडम becomes a public document. Okay, on incorporation memorandum becomes public document, articles become public document. इसका मतलब है अगर बाहर वाला है वो डायरेक्ट कंपनी को मान सकता है कि आप मेमोरेंडम दो और कंपनी को देना पड़ेगा. else you may apply to the ROC and ROC will give you the memorandum of the company. मतलब मेमोरेंडम लेना ये कोई डिफिकल्ट है ही नहीं. पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसको चाहिए किसी भी कंपनी का आपको मेमोरेंडम मिल सकता है, आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द आरओसी. तो आप ये बोल ही नहीं सकते ना मुझे पता ही नहीं था तो मैंने पढ़ा ही नहीं. आपने नहीं पढ़ा तो वो आपकी गलती है. आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस, वो प्रोडक्ट में सब लिखा हुआ है. तो आपने कोई सपोज बिस्किट खा लिया और बिस्किट खा के आपका पेट खराब हो गया, लेकिन बिस्किट के इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ था ना कि दिस कंटेन्स XYZ, उसमें लिखा है दिस कंटेन्स पाम ऑयल, और आपको पाम ऑयल की एलर्जी है. तो गलती बिस्किट वालों की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने वो नहीं पढ़ा. उन्होंने लिखवा के दिया है, क्लियर लिखा है इंग्रेडिएंट्स मैदा, आपको मैदे की एलर्जी है, आपकी गलती है. Similarly, if a outsider wants to enter into contract with a company, then they have to read the memorandum. अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो बाहर वाले की गलती है. इस रूल को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. इसका मतलब है एवरी आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी, ये देखो इंपॉर्टेंट वर्ड, इज अज्यूम टू नो. अगर आप बिस्किट खा रहे हो तो हम अज्यूम करते हैं कि आपने पढ़ा है सब इंग्रेडिएंट्स. अगर आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमने अज्यूम किया है कि आपने मेमोरेंडम पढ़ा है तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये अजम्पशन है. और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा यू आर बैड, आपकी गलती है. कुछ गड़बड़ होती है आपकी गलती है, आपका लॉस होगा. हेंस इन केस ऑफ अल्ट्रा वायर्स द कंपनी इज प्रोटेक्टेड. So what does constructive notice do? Constructive notice principle will protect the company against the outsiders. ये सब की वर्ड्स हैं, ये आपके आंसर में आने चाहिए. In case of ultra vires deals, the outsiders cannot take legal action against the company. That's how the company is protected. तो फिर लोगों ने पूछा क्या यार तुम हर बार कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यार आउटसाइडर्स को भी तो दो ना प्रोटेक्शन, उनका भी, उनके बारे में सोचो कुछ. तो इसके लिए प्रिंसिपल दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. सो जैसे आउटसाइडर्स आर सपोज टू रीड द मेमोरेंडम आर्टिकल्स, वैसे ही कंपनी इज सपोज टू फॉलो इट्स ओन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. इसका मतलब है मैंने जब वो बिस्किट के पैकेट पे नीचे पढ़ा कि इसमें पाम ऑयल है सपोज 5%, ऐसे लिखा हुआ है पाम ऑयल 5%, पढ़ लिया मैंने. अब मेरा क्या अजम्पशन है कि अगर आप लिख रहे हो पाम ऑयल 5%, तो आपने पाम ऑयल 5% ही डालना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन दैट. अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट, दैट इज. और अगर आप 5 से ज्यादा डालते हो देन आई कैन स्यू यू. आप खुद लिख रहे हो ना, तो आप जो खुद लिख रहे हो आप वो खुद फॉलो करना चाहिए. इमेजिन कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में लिखा है अटेंडेंस 75%, लेकिन कॉलेज वाले अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं. अगर आप बोल रहे हो कि अटेंडेंस स्टूडेंट का 75% होना चाहिए तो आपके पास डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज उस 75% की वैल्यू है ही नहीं. एंड देयरफॉर indoor management will protect the outsiders against the company. So what does indoor management says? That outsiders assume that company abides का मतलब है follows
जो हम लिखते हैं हम खुद फॉलो करते हैं, अपने आर्टिकल्स हमने लिखा है अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए तो हमने लेना चाहिए। शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला के हम अप्रूवल लेंगे तो मीटिंग बुलानी चाहिए। सो आउटसाइडर ऑब्वियसली विल अज्यूम कि आप खुद के रूल्स फॉलो कर रहे हो। इसमें द लैंडमार्क केस, यस, इंडोर मैनेजमेंट पे सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। इधर सिर्फ मीनिंग 2-3 मार्क्स, या डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट 3-4 मार्क्स, या फिर एक बड़ा सवाल व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शंस 6-7 मार्क्स। ओके, सो इफ एनीथिंग ऑन इंडोर मैनेजमेंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टूरकॉन, ये केस का नाम लिखना जरूरी है। एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस की, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल इज आउटसाइडर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कंपनी, ये हुआ नॉर्मल रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बट एक्सेप्शंस मतलब कहां पे आउटसाइडर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। नंबर 1, नो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मतलब उन्होंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा ही नहीं था। ओके, उन्होंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा ही नहीं, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, ओके, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, जस्ट अ सेक, ओके, सो नो कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब डिड नॉट रीड। ओके, उन्होंने मेमोरेंडम आर्टिकल्स नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड, एक्चुअल नॉलेज, उन्हें पता था गड़बड़ है अंदर, तो अगर आपको पता ही है कि अंदर गड़बड़ है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड, फोर्जरी, फोर्जरी हैज नो लीगल वैल्यू एंड देयरफॉर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इलीगल ट्रांजैक्शन, सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको पता हो ना पता हो, इलीगल ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी यूज्ड। एंड लास्ट, देयर इज अ सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, मींस आपको डाउट था कि प्रॉब्लम है लेकिन आपने इंक्वायर नहीं किया। सो सी, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन तब मिलता है व्हेन दे एक्ट इन गुड फेथ। इमेजिन मैं खुद ही करप्शन कर रहा हूं और मैंने बताया अरे मुझे नहीं पता करप्शन अलाउड नहीं है, अरे भाई इलीगल है, यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। सो दीज आर द 5 एक्सेप्शंस। सो पूरा एक्सप्लेन करो, 5 एक्सेप्शन लिखो, उसके एग्जाम्पल लिखो। सो नो नोटिस मतलब पढ़ा ही नहीं। सेकेंड, पता था गड़बड़ है। थर्ड, फोर्जरी थी, इलीगल ट्रांजैक्शन है एंड डाउट था कि भाई सस्पिशन है लेकिन आपने कुछ चेक नहीं किया, एंड देयरफॉर these are the exceptions of indoor management. Okay, so with this we come to an end of our Companies Act revision for your examination. ये एग्जाम, अगले एग्जाम, आई होप अगला एग्जाम तो आप देने वाले हो नहीं, बिकॉज यू हैव टू पास इन दिस एग्जाम इटसेल्फ विद अमेजिंग मार्क्स, करेक्ट एग्जाम्शंस इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो जो जो हमने कवर किया, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट, राइटिंग द पेपर्स, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर द केस, कंक्लूजन। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ तो भी एक बार इंट्रोडक्शन के 1-2 पॉइंट एंड देन द आंसर इन पॉइंट्स। पॉइंट में लिखना जरूरी है, उससे फ्लो रहता है, प्लस आंसर की लेंथ बढ़ती है, चेकिंग करना इजी हो जाता है, और चेकिंग इजी मतलब मार्क्स बढ़िया। ठीक है, सो दिस इज CA प्रसाद भट्ट, योर रैंकर फ्रेंड, एंड काइंडली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छे कमेंट्स है तो करिए, बुरे कमेंट्स है तो मुझे करिए, सो दैट आई विल इम्प्रूव ऑन दैट। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डू वेल, and I'll see you in CA Intermediate. Okay, thank you.